प्लान होता है, प्रोडक्ट्स होता है, सब कुछ हो सकता है। और कौन सा ऐसा कंपनी है जिसके पास मार्केटिंग प्लान नहीं है सबके पास? আছে তো সবার কাছে। কোন এমন কোম্পানি আছে যারা নিজেদের প্রোটিন পাউডারটা দেখিয়ে বলবে স্যার আমাদের প্রোটিন পাউডার খুব খারাপ, নেবেন? ऐसा कोई है जो आके आपको बोलेगा हमारा प्रोटीन पाउडर तो बहुत ज्यादा दाम है हमारा? कोई बोलेगा? तो सब क्या बोलेंगे सर हमारा प्रोटीन पाउडर भी सही है, हमारा प्रोटीन पाउडर में भी क्वालिटी अच्छा है, हमारा प्रोटीन पाउडर भी दाम उसका ठीक ही है। इसका मतलब क्या है? প্ল্যান বা প্রোডাক্ট মানুষকে পয়সা সব সময় দেবে না। প্ল্যান আর প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা সিস্টেম। এখান থেকে গুয়াহাটি পৌঁছতে গেলে যেরকম একটা ট্রেনের দরকার পড়ে, ওই প্ল্যানটা হচ্ছে একটা ট্রেন, রাইট? পৌঁছতে হবে কোথাও একটা। এবার হিন্দিতে একটা কথা আছে, কেউ যদি পড়ে আমাকে বলতে পারে কি কি লেখা আছে? রাইট। আগে তো বুঝতে হবে যে আজকে যদি আমি এখানে 2.5 ঘন্টা বসে থাকি, 2 ঘন্টা বসে থাকি, তাহলে আমি কি সঠিক জায়গায় বসে আছি না ফালতু টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে, রাইট অর রং? আজকে আমি ডাইরেক্ট সেলিং নেটওয়ার্কিং যেভাবে করতে চাইছি সেটা কি রাইট টাইম? তাহলে তো বসে লাভ আছে। আমি যদি এখানে আজকে অমিতাভকে বলি অমিতাভ 3 লাখ টাকা দেবো, বলে দিন, কি করতে হবে বলুন? একটা এসটিডি বুথ খুলতে হবে। খুলবে? খুলবে কি এখানে এসটিডি বুথ? खुलবে না তো, राइट और रॉन्ग? कोई नहीं खुलेगा एसटीडी बूथ। आज का डेट में 3 लाख 5 लाख रुपए दे दिया, इसका मतलब एसटीडी बूथ का टाइम नहीं है। अब जितना भी पैसा आप लगाओ, एसटीडी बूथ का टाइम नहीं है, एसटीडी बूथ नहीं चलेगा, राइट और रॉन्ग? তো আগে তো বুঝতে হবে কোন সময়। আচ্ছা মনে আছে যখন আগে এসটিডি বুথ থাকতো 20 বছর 25 বছর আগে, এসটিডি বুথের উপরে লেখা থাকতো 3 মিনিট से ज्यादा बात मत कीजिए, রাইট? আর আমরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম এবং 3 মিনিট হলো কি না হলো, দাদা হলো, ও দাদা হয়েছে, আরে মাত্র বিয়ে করেছে লোকটা, বাড়িতে বউর সাথে কথা বলছে, হয়তো 3 মিনিট হয়, আরে একটু তো বেশি সময় দিতে হয়। কিন্তু আমরা তো ছাড়বো না 3 মিনিটের বেশি। দাদা হয়েছে। আজকের দিনে এরকম কোনো জায়গায় एसटीडी बूथ देखा जाए ना, बट एक चीज याद करिए, उस टाइम में जिन्होंने खोला था एसटीडी बूथ, उन्होंने पैसा बना दिया था, राइट? यस। दैट मींस व्हाट? आज के 3 লাখ টাকা দিলেও কেউ एसटीडी बूथ খুলবে না, কিন্তু সেই দিন তাকে যে 10 লাখ টাকা দিয়ে একটা এসটিডি বুথ খুলতে হয়েছিল, রাইট অর রং? দ্যাট মিন্স কি টাইম। কোন টাইমে আমি বিজনেসটা করছি না আমাদের বুঝতে হবে আমরা কি রাইট টাইমে আছি। যখন কোনো কিছু ঝড় ওঠে তখন কিছু কাগজপত্র হাত দিয়ে সরাতে হয় না, রাইট? ঝড়েই সরে যায়, राइट? जब कोई फोर्स आता है उसका मतलब क्या है? उस फोर्स में अगर मैं थोड़ा बहुत भी हलचल किया तो पैसा आने का चांस ज्यादा है, राइट? लेकिन जब समय नहीं है, जितना भी लड़ाई कर लो आएगा नहीं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं आज जो हम 2 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, आर वी इन द राइट टाइम? ओके, समझना है। अगर टाइम सही हो गया, अभी आपका डिसीजन होगा कि आप इस टाइम पे जो करना चाहिए वो करोगे कि नहीं करोगे, राइट हो ना? तो पहले ही देखते हैं टाइम। ओके, इतना तो एग्री आप सब लोग करेंगे। বাংলায় বলতে বলে যে বাংলাও বলি, সবাই এটাতে এগ্রি করবে। আমাদের জীবন থেকে শুরু করে, কোম্পানি থেকে শুরু করে, প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে, যে কোনো কিছু থেকে শুরু করে প্রথমে ওঠে তারপরে নামে, রাইট? আমরা যখন জন্ম নিই আস্তে 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 বড় হই, বড় হতে 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 এক জায়গায় যায়, তারপরে বয়স হয়, আর তারপরে, রাইট? এটুকু ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এটুকু? যে কোনো কোম্পানিও প্রথমে ওঠে, একটা সময় খুব ভালো যায়, তারপর আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করে। নোকিয়া, রাইট? অ্যাম্বাসেডর, রাইট? মারুতি আর কিছু কিছু মডেল, রাইট? কোনো কোনো কোম্পানি একবার ওঠে তারপরে পড়তে শুরু করে। এটুকু ক্লিয়ার? জীবন থেকে শুরু করে, কোম্পানি থেকে শুরু করে সব কিছুর একটা টাইম হয়, তার একটা সময় ওঠে, একটা সময় নামে। এটুকু ক্লিয়ার? এবার আমি ডাইরেক্ট সেলিং দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবো, আর তারপরে নিজেদের জন্য হাততালি হওয়া উচিত আমি বলার পর যে আপনারা রাইট টাইমে কেন বসে আছেন সেটাও আমি প্রমাণ করে দেবো। এরপর সেটা রাইট টাইমে থাকার পর আপনি ইনকাম করবেন কি না করবেন সেটা আপনার উপর, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি। ওকে, ফার্স্ট এবার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নিয়ে সম্বন্ধে আসি। 1996-এ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু হয়। আপনাদের কোম্পানি মোদিকেরই প্রথম নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসে। আবে কি করে আসে সেটা বলি। সমীর মোদি স্যার 396 জনকে ডেকেছিল, ডেকেছিল অনেকে, 396 জন এসেছিলেন এবং উনি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, উনি প্রোডাক্ট বুঝিয়েছেন, উনি প্ল্যান বুঝিয়েছেন। 1996-এর কথা বলছি,
বলা 1996 এর কথা বলছি, যেখানে সামনে উনি 390 জনকে বোঝানোর পর 390 এর মধ্যে একজন ছেড়ে বাকি সব বলছে এটা কি বিজনেস, এবার কে বলে তাকে বলে, আবার বলে ফরেনও যাওয়া যাবে, এবার কি ধরনের বিজনেস। একটা লোকও বিশ্বাস করেনি, একটা মানুষ বিশ্বাস করেছিল, যার নাম অরুণ ভার্গব, একটা মানুষ। সেও বুঝতো না, সেই মানুষটাও বুঝতো না বিজনেসটা কি করে করে, সেও জানতো না, কিন্তু সে জানে কিছু একটা অপরচুনিটি এসছে, আমি করব, রাইট। তখন কিন্তু এটা ছিল আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য, আমরা আলাদা। আমি যদি এখন আমার বাবাকে গিয়ে বলি যে বাবা একটা দারুণ আইফোন এসছে জানো, ফোন ওটা নেবো, আমার বাবা ফার্স্ট তুমি আগে নিও না, বাকিরা নিয়ে আগে ফাঁসুক, তারা যদি না ফাঁসে তুমি তখন নাও, রাইট। এখনো পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কোনো কিছু নিতে গেলে আগে তুমি নেবে না, আগে ওয়েট করো। কিছু লোক ওয়েট করে না। ওই যে 1996 এর 390 লোককে যখন বোঝানো হয়েছিল, একজন মানুষ বলেছিল আমি করব। এরকম মানুষ কিন্তু 100 জনের মধ্যে মাত্র 2 জন থাকে। চলো हिंदी में बता रहा है, मेरा ये कहना है कि 1996 में जब मिस्टर मोदी ने 390 लोगों को समझाया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उसमें से एक छोड़ के बाकी सबने पूछा सवाल जो हम लोग पूछते हैं, हमरा की पारबो, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, नहीं ये बिजनेस नहीं होगा। लेकिन एक किसी ने सोचा था, उनको भी पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उनको भी पता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता था। बाकी जो 389 लोग थे उनको भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बोला करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ऐसे लोग 100 में से 2 ही लोग होते हैं, और उस टाइम पे बिना सोच समझ के सुरेखा भार्गव जी ने शुरू कर दिया था, उनको भी कुछ भी नहीं पता था। कमा कौन रहा है आज के डेट में? 1.3 करोड़ पर मंथ उनका चेक है, 1.5 करोड़ का चेक, क्योंकि बिना सोचे किया था, इसलिए कमा रहा है। हमारा तो आदत है ज्यादा सोचना, पारबो আমি, আমার দ্বারা হবে, আমার बिना যখন চিন্তা না করে মানুষ কিছু করে। এরা চায় ফার্স্ট होते, ये लोग चाहते हैं कि हम फर्स्ट हो। आज भी आईफोन का दुकान में जब नया मॉडल लॉन्च होता है, सुबह 3 बजे से अमेरिका में उसमें लाइन लेके खड़ा हो जाता है। उसको भी पता नहीं आईफोन में क्या आने वाला है, लेकिन वो फर्स्ट होना चाहता है। कभी कभी फर्स्ट होना पैसे के बराबर होता है। नाउ द गुड पार्ट, अभी आप लोगों के लिए गुड पार्ट, अभी तो ये पार्ट खत्म हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग अभी ये जगह पे है, दिख रहा है, ये वाला जगह पे है। अब यहां से शुरू हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग। ये तो पहला 20 साल हो गया, अब अगले 20, 50, 100 साल ये ग्रो करेगा। और अभी बोल रहा हूं आप लोगों के लिए जोरदार तालियां कि आप लोग यहां पे बैठा हो, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी अपलाइन है, थैंक यू बोलिएगा उस अपलाइन को कि राइट टाइम में लेके आप लोगों को धक्का मार के जो भी करके लेके आ गया सही जगह पे। वो एक स्टोरी है ना, वैसा बोलूं? तो एक राजा था, अपलाइन का एक राजा था, सबने सुना, आधा सुना, मैं आधा कंप्लीट करूंगा। एक राजा था, अनाउंस कर दिया कि जो भी मेरा स्विमिंग पूल को क्रॉस करेगा, तैर के क्रॉस करेगा, हम उसको आधा राज्य दे देंगे और मेरा बेटी का हाथ उसके हाथ में। अब ये सुनकर मर्द लोग करता क्या है, दौड़ दौड़ के स्विमिंग पूल के सामने पहुंच के तैरना जाएगा, सीधा खड़ा हो गया। नहीं किया यार, ये राजा मगरमच्छ सांप सब छोड़ के रखा है स्विमिंग पूल में, और हमें बोल रहे तैर के जाए। पागल आदमी, इतना पूरा दौड़ा दिया, पता होने से हम कभी नहीं आता, जाने पागल है सब। वापस जाने लगा, एक पतला सा लड़का, एकदम पतला दुबला पतला, सीधा छलांग लगा दिया उसमें स्विमिंग पूल में, और जैसे जैसे करके उस तरफ चला गया। जैसे उस तरफ गया, रिपोर्टर आ गया, सर आपने ये कैसे किया? तो रुको बताओ ना कैसे किया। अरे रुको भाई, सांस तो लेने दो। 3 बार जब पूछा कि आपने ये तैर के उस तरफ गया कैसे, वो सब छोड़ो, वो गया कैसे, पहले ये बताओ पीछे लात पर मारा। इतना तक ठीक था, सेकंड सेंटेंस भूलना मत। इसके बाद जो बोला वो सुनने लायक है। उन्होंने बोला बट थैंक यू सब उस बंदे को जिन्होंने मुझे लात मारा, अगर वो नहीं मारता तो मैं वहां जाता भी नहीं, और मैं तैरते हुए उस तरफ पहुंचता भी नहीं।
और अगर नहीं पहुंचता तो बेटी का हाथ भी नहीं मिलता और आधा राज्य भी नहीं मिलता। सो थैंक यू अपलाइन कि आपने इस टाइम में हमको आके मोदी केयर में भेज दिया। वो भी जैसे भी लाया, आपको पता नहीं मैं कैसा लाया, प्यार से लाया या झूठ बोल के लाया मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी किया सही किया, क्योंकि अभी टाइम शुरू हो रहा है। अब क्या होगा, ये आप लोग इस परसेंटेज में हो 13.5%। यहां पे लोग क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कुछ लोग तो कमा रहे हैं, कुछ लोग तो आ रहे हैं, चलो हम भी शुरू करते हैं। इन दैट पॉइंट यू आर हियर नाउ, दैट पॉइंट यू आर हियर, दैट पॉइंट यू आर हियर नाउ। यहां से शुरू होगा लाइफ। सो अपने आप को पहले थैंक यू बोलिए, करो ना करो, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब ये सुनने के बाद मोटिवेट होकर करो ना करो, मोटिवेट होकर ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आप राइट टाइम पे हो, इतना समझ लो। अब उसी टाइम पे हो जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करेगा। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि मैं सही टाइम में बैठा हुआ। अब यहां से ग्रो करेगा, आप लोग यहां पे है। इसके बाद कुछ लोग आएगा जो ये दोनों को देख के आता है, और वो ह्यूज 100 में से 34-35 लोग ऐसे होता है। पता है ये लोग कहां ज्वाइन करेंगे? ये लोग, ये जो 2 लोग आ गया ना, जो आप लोग, इनके नीचे इसको आके ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठे रहो फिर भी आपके घर पे आके बोलेगा हमको ज्वाइन कराओ, ऐसा नहीं होगा। ये मत सोचना अगर समय है दरवाजा खुले मुस्तकी सर आपको 10 टूथपेस्ट देवे तो क्यों बोल देना, पूछो तो वेदा। तो यहाँ पे क्या होगा, आएगा। दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम। ये अगर 10, 20 साल, 30 साल, 50 साल, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, ये सही समय पे आप है, ये चलेगा। फिर क्या होगा, इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत गिरेगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे कि एक बार ट्राई करते हैं। पर यहाँ पे फाइट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अभी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मन है कि हम कुछ करेंगे। यहाँ पे फाइट ज्यादा है। और कुछ लोग कहाँ आएंगे, जब दुनिया खत्म, एक बार ट्राई করে দেখা যাক। তুই ট্রাই করে কি করবি? গল্প শেষ, গল্প শেষ, রাইট অর রং? এখানে তো ট্রাই করে লাভ নেই। সো নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড दैट यू आर इन द राइट टाइम। এবার আপনি বলবেন রাইট টাইম বলছেন কি করে? आप कैसे बोल रहे हो राइट टाइम? हमें प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा हमें। राइट टाइम का प्रूफ ये है, डायरेक्ट सेलिंग का न्यूज़ क्या बता रहा है कि 7.15% रेट में ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब क्या? इस साल अगर 1000 करोड़ किया, अगले साल 1200 हुआ, 1200 के ऊपर 7%, फिर 1400 हुआ, 1400 के ऊपर 7%। एवरी ईयर दिस इज ग्रोइंग। सिर्फ 20 से 22 साल में कितने में आया? 22,142 करोड़। 22,142 करोड़ का बिजनेस है, जो हम पहले दिखा रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, ये फैक्ट्स में है। क्या लिखा हुआ है? 44% फीमेल, 56% मेल। मैंने क्यों लिखा ये चीज? 44% फीमेल एंड 56% मेल। इसका मतलब इस बिजनेस में एवरीबडी कैन बी योर कस्टमर। मेल भी आपका कस्टमर हो सकता है, फीमेल भी आपका कस्टमर हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ मेल फोकस्ड है या फिर पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया आपका कस्टमर बन सकता है। इतना बड़ा इंडस्ट्री ये है। दिस इज प्रूफ दैट दिस विल ग्रो फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स, 60 इयर्स, 70 इयर्स, 100 इयर्स, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग सही समय पे हो। ये सोच के आज घर जाना, करो ना करो, बात बताओ। और ये पता है ये बिजनेस कितना देगा आपको, इतना उम्मीद भी नहीं करता। हमने लोगों को देखा, बोला कि हम यहाँ पे 20,000 रुपया कमाना चाहते हैं, 30,000 रुपया कमाना चाहते हैं। ये बिजनेस आपको उतना दे सकता है जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, उतना उम्मीद भी नहीं कर उतना देगा। और द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बिजनेस इज, आप किसको जाके सवाल पूछोगे कि मोदी कर हमसे होगा कि नहीं होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज किसको जाके पूछोगे। हम उसको जाके पूछेंगे जिन्होंने जिंदगी में खुद ही नहीं कुछ नहीं किया, उसको जाके पूछोगे दादा मोदीगढ़ হবে জীবনে হবে না, राइट? दादा मोदीगढ़ कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकते। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, लिसन टू द क्राउड, लेकिन करना वही करो जो आपको करना है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तन्मय जी ऑफिस जाएंगे, तन्मय जी ऑफिस जाएंगे, उसको ना मनपसंद का शर्ट नहीं मिला। अब ये सोच रही है इतना सारा शर्ट मेरा था, कहां गया शर्ट मेरा? तो ढूंढ ढूंढ के बोला, बीवी को बोला, इसको बोला, कहां है मेरा शर्ट? बोले इतना तो शर्ट पड़ा हुआ है। नहीं, ये सब बेकार है, इस्त्री करा नहीं, किसी करा नहीं, ये बेकार है। अच्छा, कोने में ना एक शर्ट रखा हुआ है ब्लू कलर का, एकदम इस्त्री करके पूरा ठीक ठाक करके रखा हुआ।
लेकिन तन्मय को उस शर्ट पहनना ही नहीं है। क्यों? तन्मय को पता है उस शर्ट अगर पहन लिया मुझे पूरा बंदर दिखता है। इसको पता है सब कुछ पहन लेंगे लेकिन वो शर्ट हम नहीं पहनेंगे भाई, क्योंकि वो शर्ट पहन लिया तो मुझे पता है मुझे कैसे दिखता है। लेकिन फिर ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा आखिर में क्या करेगा बंदा जब कुछ भी नहीं मिलता है? वही पहनेगा। अब बेचारा क्या करेंगे? शर्ट निकाला, पहन लिया, लेकिन मूड नहीं है। सर नीचा करके पहन लिया, पहन के ऑफिस के तरफ जाने लगा। जैसे घर से निकला इसका एक दोस्त, अरे तन्मय बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो ब्लू शर्ट में तू बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सुनो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अब तेरा सीधा होगा। अब थोड़ी देर गया इसका वही का अंकल, तन्मय फाटाफाटी लग जाता आज के जे शुरू में फाटाफाटी। अब वो स्ट्रेट हो गया, अभी ब्लू शर्ट ही अच्छा लग रहा है, राइट? जो अभी देखो ब्लू शर्ट जो 2 मिनट पहले ठीक नहीं था अभी अच्छा लगा। ऑफिस घुसा, ऑफिस का बॉस, अरे बाप रे बाप, तुमको तो 5 साल कम लग रहा है भाई, अब तो पूरा फिट। अच्छा यही बेस्ट है। और सोचिए ऑफिस का सबसे सुंदर लड़की ऐसे खड़ा होकर बोला, तन्मय दा भाई क्या लग रहे हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 15 दिन उसको धोएगा नहीं शर्ट और 15 दिन उसी को होगा कि नहीं होगा? ओ भाई साहब जो शर्ट 1 घंटा पहले, राइट ना? तो अभी हमको क्या चॉइस करना है? ये जो चारों पॉजिटिव लोग इसको जो पॉजिटिव बनाया, दे आर द राइट पीपल, राइट? और हम जाके किसको पूछेंगे मोदी का नाम से होगा कि नहीं? जो खुद ही मरा हुआ है, जो हाफ डेड है लास्ट, उसको जाके पूछेंगे दादा मोदी का पढ़ो जीवन पढ़বে না, গল্প শেষ, राइट? सो এখন থেকে किसको सवाल करेगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जाके किसको पूछ रहा हूं? पूछो उस आदमी को जिन्होंने 2 लाख रुपया कमाया, उसको पूछो मोदी का होगा कि नहीं। वो आपको पॉजिटिवली बोलेगा 100% होगा भाई, तुमसे ही होगा, राइट? एक जिम में जब पतला सा लड़का जाके बोलता है ना हमको बॉडी बनाना है, सब हंसता है, लेकिन वो ट्रेनर सिर्फ नहीं हंसता, उसको पता है डे 1 से वही से शुरू होता है। एक बड़े बिजनेसमैन को जाके पूछो कि मुझे ये बिजनेस करना है, सब हंसेगा, लेकिन वो बिजनेसमैन सिर्फ नहीं हंसेगा। क्यों? उसको पता है बिजनेस छोटे से ही शुरू होता है। इसीलिए सुनो सबकी, करो अपनी। ओ भाई साहब सबका सुनने जाओगे, ऐसे एक आदि किस घर में भी होता है। जिन जिन लोगों का शादी हुआ मुझे सब पता है। বাড়ি থেকে শুরু করো, গোষ্ঠ তো এক বছর ধরে কোথায় আসছে না তো কিছু। বাড়ি থেকে বলবে, আমি এটাও বলে দিচ্ছি। So let us understand in business. Thank you. बताने के लिए जोरदार तालियां। So understand the point. The point is not plan. The point is not products. The point is, अच्छा बताइए, तन्मय देखो, तन्मय हाथे प्रोटीन पाउडर, राइट? আমার হাতে प्रोटीन पाउडर, तन्मय X कंपनी, আমি Y कंपनी, हम Y कंपनी में। कौन सा ऐसा सेल्समैन दुनिया में है जो बोलेगा हमारा प्रोटीन पाउडर खराब है? बोलेगा कोई? हम भी बोलेंगे प्रोटीन पाउडर अच्छा है भाई, ये भी बोलेगा प्रोटीन पाउडर अच्छा है भाई, हम बोलेगा हमारा दाम देखो कम है, बोला हमारा भी कम है, बोला हमारा प्रोटीन पाउडर पी के कुछ लोगों का ये बढ़िया हुआ है, ये भी बोलेगा हुआ है। मतलब 2 प्रोटीन पाउडर अगर हाथ में है तो प्रोटीन पाउडर का कोई वैल्यू नहीं है, जो बेच रहा है उसका वैल्यू है, वो कैसे बेच पाएगा, दैट इज डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे होता है? फॉरगेट प्लानर, ये डिफरेंस कैसे होता है कि ना मैडम? 2 प्रोटीन पाउडर अगर सेम होता है तो किससे लेंगे? वो तो हमसे लेंगे ना, प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे, राइट? हमसे लेंगे, लेकिन हम डिफरेंट कैसे होंगे? सवाल तो ये, हम डिफरेंट कैसे होंगे? हमसे क्यों लेगा वो? डू समथिंग जो आपको डिफरेंट बनाएगा। डेमो किट किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में अगर होगा, आप उसको यूज करो ना करो, बोलेगा प्रोफेशनल है भाई, डेमो किट हाथ में लेके चल रहे हैं। और डेमो किट अगर ऐसा आपने किसी का घर के टेबल पे रखा, डेमो किट आपने डेमो किट टेबल पे रखा, अगले वाला सोच लेगा बंदा प्रोफेशनल है, इसका हाथ पकड़ो। सिर्फ एक डेमो किट। मेरा एक दोस्त था, पता है क्या करता था? किसी क्लाइंट से मिलने जाएगा, एक इंग्लिश वाला किताब ना सामने रख देता खोल के। मैं बोला तू क्या करते इंग्लिश का किताब? मैं बोला लेकिन तेरे को तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। वो तो हमको पता है, उसको कहाँ पता है? उसको तो नहीं पता ना, हमको तो इंप्रेशन जमाना है, राइट? He also knows
बात प्रोडक्ट की नहीं है, बात इंप्रेशन की है। हम क्या जमा रहे हैं इंप्रेशन। मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मेरा एक भाई था दिल्ली में, उसका इंश्योरेंस में नौकरी लग गया, मुझे था इंश्योरेंस में। अब गया, पहला दिन ऑफिस गया तो थोड़ा सा नया था, सर हमें कुछ काम दो, सर हमें कुछ काम दो, हम जाएंगे, हमको कुछ दो, ये दो। उसका बॉस उसको बोला काम कर, तो ये तो छटपट करिस ना, ये ले नंबर, कल जाके इनको तुम इंश्योरेंस दिखा के आना, लेकिन 9 बजे चला जाना। बोलो ना, लेकिन 9 बजे चले जाना। अच्छा, इंडिया में 9 बजे का मतलब क्या है? 9:30 बजे 10 बजे। इंडिया में 9 बजे का मतलब 9:30 तो मिनिमम, 10 भी जा सकते हो, राइट सूरज? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लोग लोगों से प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते। अब क्या हुआ, उसको इंश्योरेंस दे दिया, उसको बोला कल 9 बजे पहुंच जाना। अब वो सर 9 बजे तो क्या है, अगले दिन 9:35 टिंग टोंग। उसको पता नहीं था जिसका घर में टिंग टोंग किया है वह आर्मी का जनरल था। उसको तो पता नहीं था, आर्मी जनरल था। टिंग टोंग जैसे ही खोला, बोला सर बॉस ने भेजा आपको टाइम कितना था? बोलता 9 बजे। अब टाइम कितना हो रहा है? सर 9:35। उसको फर्क ही नहीं पड़ा। सर 9:35 9 बजे से तो हुआ है, ऐसे क्या फर्क पड़ता? तुम घर चले जाओ। हाँ तुम चले जाओ। तो मुझे सर आधा घंटे तुम घर जाओ। बोला सर प्लीज सर ऐसा मत करिए, बॉस ने भेजा है, अब वापस तुम घर जाओ, तुम मेरा आग के सामने से घर चले जाओ। अब जब 8-10 बजे से घर चले जाओ, बोलो ना, इसका टेंशन शुरू हो गया। अभी हाथ जोड़ करने लगा, सर प्लीज देख लीजिए सर, प्लीज सर। तो तुम घर जाओ। अच्छा, इतना बार प्लीज प्लीज बोलने के बाद उसको थोड़ा सा दिमाग में कुछ लगा। उन्होंने बोला हम आज तो नहीं देखेंगे, कल पक्का 9 बजे आना। और अगले दिन इसका हालत क्या होगा? 5:30 बजे सुबह अलार्म लगाया, 5:30, और उठ गया 5 बजे। आज तो हम मिस नहीं करेंगे। उठ गया 5 बजे, बारी घर से आधा घंटा दूर भी नहीं है। उठ के 7:30 8 बजे तक रेडी वेडी, सूट बूट पहन के रेडी की। आज तो साला 10 मिनट पहले जाऊंगा, लेकिन 5 मिनट बाद नहीं जाऊंगा। सूट वूट पहन के जैसे रेडी होके बाइक पे निकलने जाएगा, बारिश। अभी सोच रहे थे बारिश आज ही आना था, इसे तो 9 बजे पहुंचना है। रियल स्टोरी बता रहा हूँ, 9 बजे पहुंचना है। अब इन्होंने क्या किया, फिर सूट वूट उतारा, बैग में डाला, घर का ड्रेस पहना, बाइक लेके निकल गया। सामने चाय का दुकान में 8:30 बजे खड़ा हो गया, घर का सामने। उनके वो जो कॉर्नर लेफ्ट हैंड चैनल था उसका, बोला एक कप चाय पिलाओगे? बोला हाँ चाय दुकान खुला, चाय पिलाऊंगा, पियो। बोला थोड़ा कपड़े चेंज करने की जगह होगा? तो पीछे चले यार, थोड़े नहीं पीछे जाकर। और पीछे गया, कपड़ा वो सब उतारा, सूट पहना, पक्का 8:55 टिंग टोंग, दरवाजा खुला। अरे वाह, आज तो तुम 5 फीट पहले ही आ गया। लेकिन बाहर तो बारिश हो रहा है, तुम तो भीगा नहीं एक तरफ। सर सब जुगाड़ लगा लिया। वो देखिए हैंडल में मेरा पुराना कपड़ा, और ये मैंने यहाँ से पहन के आपका लाओ बिठाया। अभी शुरू किया, बोला सर इंश्योरेंस, उसको 13,000 रुपया देके बोल रहे, ठीक है तुम ले जाओ। बोले सर आपने तो देखा ही नहीं इंश्योरेंस। ठीक है 13,000 रुपये, तुम जाओ बॉस को देखो। अब ये बंदा है इंडियन, ये दरवाजा तक गया, फिर वापस आया। बोला सर ये काम तो आप कल भी कर सकते अब जैसे ही बोला कल भी कर सकते थे, उसको बोला तू बैठ, समझ ले चीज। जब मैं पैसा दे रहा हूं और तेरे को पैसे लेके जाना है, तभी तू आधा घंटा लेट करके आया। साला हम मर गया, तुम साला लेने के टाइम में आधा घंटा बाद आया, मरने के बाद तो साला कब आओगे पैसे लेके, मुझे समझ में नहीं आएगा। अरे भाई पंचुअलिटी भी कुछ चीज होता है। तुम हमको विश्वास दिला रहा है कि हमारा पैसा हमको टाइमली मिलेगा बाय कमिंग लेट। अब लेट करके आके मुझे प्रूव करना चाहोगे कि हम आपको पैसा टाइमली देंगे, और जिस दिन वो टाइमली आया उस दिन इंश्योरेंस भी देखा नहीं। राइट और रॉन्ग? लोग आपसे प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं, प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदते। आपको तो पहले ये चीज क्या हो रहा है बिजनेस में, छोटे चीज। आजकल आपने देखा होगा छोटा सा एक मेडिसिन निकला है, एक पेपर में एक उसमें एक ही मेडिसिन आता है, देखा आपने?
হ্যাঁ, একটাই মেডিসিন আছে একটার মধ্যে, ছোট এইটুকু। आप सोचिए डॉक्टर के पास गया ये बंदा, मेडिसिन नया नया लॉन्च हुआ है, तो ভালো ওষুধ বেরিয়ে জানেন তো, এই দেখবেন এই ওষুধটা দেখবেন, ডাক্তার বলে এটা কি पॉकेट से उनको बार बार ओषुध देखाচ্ছে, राइट? लेकिन वही मेडिसिन अगर कोई सामने मेडिकल में खोलता बॉक्स, अंदर हाथ जाके वही मेडिसिन देता है, डिफरेंस आता कि मेडिसिन इज द सेम बट द पर्सन इज नॉट डिफरेंट। प्रोटीन पाउडर सेम, आपको बनना पड़ेगा डिफरेंट। यही छोटा छोटा चीज नेटवर्क मार्केटिंग में किसके पास लोग ज्यादा ज्वाइन करेंगे, किसके पास कम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे चीज, बहुत पैसा तो छोड़िए लेके जा सकते हैं, और ये बिजनेस देता भी है, जितना आप चाहोगे उससे ज्यादा दे सकते हैं बिजनेस। एक स्टोरी सुना दो आप लोगों को, इजी हो जाएगा समझने में, जितना आप चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा। एक राजा का दरबार था, दो दोस्त आए, दुजन बंधु। तो दोस्त है कि राजा को, राजा जी एमन गान सुनाओ, ऐसा आपको गाना सुनाएंगे ना आप सुनते रह जाओगे 3-4 घंटे। तो बोले ऐसा कौन सा गाना है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो आप चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग से उससे बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा आपको बताओ। तो सर ऐसा गाना आपको सुनाऊंगा ना राजा जी, आप सुनते रह जाओगे 4-5 घंटा। तो 3-4 बार बोलने के बाद राजा जी बोलो सुनाओ सुनाओ। अब शुरू किया, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा गाना चला, सब सुनता रह गया। जैसे गाना खत्म हुआ, राजा ने पूछा बोल तेरे को क्या चाहिए? उन्होंने बोला नहीं आप जो मर्जी है दे दो, हम कुछ नहीं बताएंगे। बोला बोलना तेरे को क्या चाहिए, इतना बढ़िया गाना गाया, तू बोल तेरे को क्या चाहिए? नहीं हमें ऐसे कुछ नहीं चाहिए, अब आपका जो मर्जी है आप दे दो। बोलना क्या चाहिए, इतना बढ़िया तूने गाना गाया, नहीं हम कुछ नहीं, आपका जो मर्जी है दे दो। तो राजा ने जमीन जायदाद हीरा जवाहरात भर भर के उसको दिया। वो लेके बाहर आया, अब दोस्त पूछ रहे हैं 3 बार तेरे को पूछा कि जो चाहिए तू मांग ले, तुमने मांगा क्यों नहीं? बोला तो फिर सुन एक बात, अगर मैं मांगता ना अपनी औकात के हिसाब से मांगता, और जब राजा देता है ना, राजा अपनी औकात के हिसाब से हमें देता है। हम मांग ले लेते हैं, ये तो बिजनेस ना आपका औकात के हिसाब से ज्यादा आएगा इस बिजनेस में। दैट इज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि लगे ये करना क्या है। एक ओवर में 6 बॉल होता है, 6 में से 5 बॉल मिस हो सकता है, राइट? और तो जब क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट आप लोगों को याद होगा जिन्होंने क्रिकेट खेला, गली क्रिकेट, जब हम लोग खेलते थे 3-4 विकेट जब चला जाता था, हम जब आते थे तो वहां से हमारा कैप्टन बोलते ठीक है था, टिक के रहो, रन नहीं चाहिए, टिक के रहो, राइट? ये बोलते टिक के रहो पिच में, रन नहीं चाहिए लेकिन टिक के रहो। घंटा टिक के रहो बोल रहा है, उसको रन नहीं चाहिए, वो इसलिए बोल रहे टिक के रहो क्योंकि उसको पता है लूज बॉल आएगा, जैसे लूज बॉल आएगा तभी मारना है। ये टिक के रहो का पिच का मतलब है लूज बॉल का इंतजार करो। मोदी केयर में टिक के रहो का मतलब है लूज बॉल का इंतजार करो, कोई ना कोई आके आपको ज्वाइन करेगा और आपके लिए 2 लेग 4 लेग बनाएगा। टिक के रहने का मतलब है पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं। कितना जल्दी पैसा आएगा तुमको? तुमने बॉल ही नहीं खेला, 50 ओवर ही नहीं खेला, रन कहां से आएगा तुम्हारा? उसको 1 हफ्ते में रन चाहिए, नहीं होता है। टिक के रहो। ये बिजनेस में जो जितना टिका है उसका टीम उतना बड़ा है। जे जो तो पीछे থাকবে তার তত রান বেশি, क्योंकि लूज बॉल आएगा 10 लोगों को बताओगे तो 2 लोग तो ज्वाइन करेगा ना। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये पिक्चर मैं उन लोगों के लिए लाया जो लोग आज सोच रहे हैं, ये जो यहाँ पहले आप लोगों को नहीं बोल रहा, और ये मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, जो जिन लोगों का सामने हाथों उसको बोलता हूँ आप लोग सबसे बेस्ट है। आप लोगों ने कल हम खराब कर देंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज तो सामना सामने है ना, इसलिए रिमेंबर वन थिंग इज वेरी सिंपल। ये जो फिश है ना, आपको देख के लग रहा है सेफ है, इसको ना बड़ा फिश इसके पीछे जाएगा, ना इसके पीछे कोई इसको पकड़ने जाएगा, ना बड़ा फिश इसको खाएगा। ये पूरा सेफ है, कोई इसको नहीं खाएगा। खाने का चांस किसको है? इसका। ये खुले में घूम रहा है। बड़ा मछली इसको मार सकता है, इसको कोई काट भी सकता है, इसको पकड़ के लेके जा सकता है। ये सेफ है, ये अनसेफ है। जैसे मोदी के को फील्ड में जाके उतरोगे आप अनसेफ हो जाओगे, पहले बता रहा हूं।
यहाँ पे लोग आपको मना करेगा, মানুষ অপমান করবে, ইগো হিট করবে, তুইও ফেসে গেছিস, तू भी तेल समूह का बिजनेस में आ गया, तू घर घर जाके यहाँ पे इतना मारेगा ना कि आप सोचेगा हम क्यों आए। कुछ लोग आके बोले हम ही খেলাম, আমাকে অপমান করে দিল, তুই কে অপমান করলো, কি ভাই আমাকে অপমান করে দিল, আমাকে এই যে মুখে সামনে নাকি তুই তোকে অপমান করবে না, এইখানে বেরো। আবার একটা কথা শুনুন, বাংলায় বলি, হিন্দিতে বলি আপনি লিয়ে, বাংলা বলছি, আগে হিন্দিতে বলে দাও। খুব সিম্পল, এই যারা বলেন আমাকে অপমান করে দিল, আমাকে এই করে দিল, ওই করে দিল, ওদের জন্য এটা, আপনাদের জন্য না। যতটুকু অপমান উপর থেকে লিখিয়ে নিয়ে এসছে অতটুকু আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে। কখনো বউ করবে, কখনো শাশুড়ি করবে, কখনো ছেলে মেয়ে করবে, কখনো কেউ না কেউ ওইটুকু অপমান নিয়ে যেতেই হবে আপনাকে। মোদিকে করলে অপমান হবে, শুধু ডিফারেন্স একটাই, ও যখন বাকি লোকের অপমান করবে ব্যাংকে 1 টাকা আসার চান্স নেই, মোদিকে অপমানিত হলে ব্যাংকে টাকা আসে 50-50 চান্স। এইটা আমাদের বলতে পারবো না অনেককে, আমাকে বলে তোকে বলবে না কেন ভাই, তুই তো জলে আছিস, তোকে তো ছবল খেতেই হবে বাবা। কি কি ছবল হয় মোদিকে, ফেসে গেছে, পারবে না, আমার কাকার মেয়ে চেষ্টা করেছিল করতে পারি, তোর কাকার মেয়ে হতে পারে জি, জি মানে হচ্ছে ভালো জিনিস, মানে গাধা, তা আমি না তো বাবা, আমার কাকার মেয়ে চেষ্টা করেছে পারি, তোর কাকার মেয়ে তারা কিছু হবে না, আমাদের হবে না ভাই। ওই ট্র্যাপে অনেকে পড়ে যাবে, কোনো ট্র্যাপে পড়ার দরকার নেই। 1 লাইফ 1 চান্স, আমার লাইফ আমার চান্স, চান্স তো আমি নেবো, চান্স তো আমি নেবো, রাইট অর রং? আমাকে বলে দিল, আমাকে কি করে দিল, আরে তোকে বলবে না কেন, বিকজ তুমি এইখানে নেই, তো এখানে তো নেই। আর এখানে কারা থাকে, যারা ভাবে আমাদের লাইফে প্রচুর অপশন আছে। এখানে যদি কেউ मोदी के ना करे, सॉरी हिंदी में ना, हाँ यहाँ पे अगर कोई मोदी का नहीं करता है तो ये गारंटेड है कि दाल रोटी आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? यहाँ पे जितने सारे लोग अगर मोदी के नहीं भी करते तो उनके पास कुछ और ऑप्शन है, राइट? और वही है प्रॉब्लम, ये ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन। प्रूफ करूं कैसे? मैं थोड़ा हिसाब, जब एकदम नया नया शादी होता है, अब ऑप्शन देखिए क्या होता है। बीवी आया रात को, क्या खाओगे? बोले क्या क्या है? मटन है, राइस है, पराठा है, चिकन बोलोगे तो चिकन कर देंगे, अंडा खाना है तो बता दो, दाल खावे तो बोले दाओ। অপশন অপশন, হাজবেন্ড কনফিউজ কি ছেড়ে কি বলবে। এই বিয়ে 15 বছর পর রাত্রিবেলা বউ এলো, না না রাত্রিবেলা বউ এলো, রাত্রে কি খাবে, কি কি আছে, অপশন কি? দুটোই অপশন আছে, হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ খাবো, কোনো কনফিউশন নেই। কোনো কনফিউশন আছে, হ্যাঁ খাবো। যখন অপশন কম, নো কনফিউশন। मोदी केयर में बहुत सारे लोग आएगा, पीछे 10 ऑप्शन लेके आएगा, नहीं वो तो चले जाएगा, चले जाए बेटा ना कर ले, एक बार ट्राई করে দেখে আসি। ट्राई করে মানে আর ইউ প্লেইং উইথ ইওর লাইফ, আর ইউ প্লেইং উইথ ইওর ক্যারিয়ার। 1 লাইফ 1 চান্স, নিজের আইডেন্টিটি বাঁচার মতো আমাদের ইচ্ছে নেই, 100 হতে পারে, মোদিকে দিতে পারে, মোদিকে দিতে পারে। কারণ বড় লোক হওয়ার তো 3টেই অপশন আছে, 3ই অপশন है। হ্যাঁ বলবো 3টে অপশন কি কি? ওকে বলে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন আপনারা কোন অপশনে আসেন। নাম্বার 1, বড় লোক হওয়ার একটাই ফার্স্ট অপশন, বাবা হতে হবে কোটিপতি। কার বাবা এখানে কোটিপতি? মুকেশ আম্বানির মতন কার বাবা? তো প্রথম অপশন তো গেল, নেই, চান্স শেষ শেষ। সেকেন্ড, শ্বশুর চুজ করতে হবে কোটিপতি। কতজন বিয়ে করেছেন হাত না? ছেলেরা বিশেষ করে। আচ্ছা আপনাদের কি শ্বশুর বাড়ি কোটিপতি? না, বা দ্বিতীয়টাও গেল। আর তৃতীয়টা হচ্ছে 3টে ওয়ার্ড सूरज लिख लीजिए कोटिपति হওয়ার, পয়সা কামানো। SB AD MK লিখে নিন, এটা মনে রাখবে। 3 নম্বর কোটিপতি হওয়ার হাই চান্স SB AD MK। SB মানে হচ্ছে সিধা बैठो, টেরা করে। একটা মানুষ যখন সোজা বসে, মানে কোনো কাজ করার চেষ্টা করে,
সে নেগেটিভ ভাবতে পারে না। নেগেটিভ কখন ভাবে? তখন চেয়ারে বসে আছে এরকম করে, বলো বলো। एसबी হচ্ছে सीधा बैठो। नेक्स्ट হচ্ছে एडी। सुन लो, एडी का मतलब है अपना देखो दुनिया के भार में। एडी माने अपना देखो दुनिया के भार में, और एम के माने की मेहनत करो, আর কোনো চান্স নেই, বড় বড়। এসবি, এডি, এম কে, আমাদের কাছে এই তিনটেই চান্স আছে। না আমার বাবা মুকেশ আম্বানি, না আমার শ্বশুর মুকেশ আম্বানি। নেক্সট বার যদি কারো বিয়ে করার চান্স আসে, এভাবে চুজ করবে যাতে শ্বশুর রাজা বড় লোক হয়। যারা প্রথমবার করে নিয়েছে তাদের এখনো চান্স আছে, তারা করতে পারে না, এগিয়ে যাচ্ছে। বেশি করে টাইম নেবো না, এগিয়ে যাচ্ছে। নাও দি পয়েন্ট ইজ, এটাতে আসার আগে সে বিজনেসটা জেদ ছাড়া হবে না। বিজনেসটা প্রোডাক্টের জন্য যদি কেউ এসে থাকে, পারবেন না এখান থেকে পয়সা ইনকাম করতে। প্ল্যান ভালো বলে যদি কেউ এসে থাকে, তাতেও ইনকাম করতে পারবেন। এখানে সিম্পল, এটা কোনো পুরোটা নেই, आपको दोबारा खींचना पड़ेगा। आगे আমি বলবো, we have to understand যে আমাদেরকে জেদ আর অ্যাকশন, জেদ নিজের ভেতর থেকে আসে। অ্যাকশন যখন আমরা করতে যাব, কিছু লোক আছে সে বলবে না তুমি পারবে না, না করতে পারবে না, সেই জায়গাটা ইগনোর করতে হবে। यहाँ पे जो इजी ऑर्बिट का मतलब है, यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत मतलब करेगा भी नहीं, आपका टीम में भी ऐसे होंगे। इजी ऑर्बिट मतलब इसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं जहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है, कंफर्ट है, ज्यादा टेंशन हमें मत दो। वो लोग करते क्या है, वो लोग फर्स्ट काम क्या करते हैं, सिर्फ परचेस करते हैं। आपका टीम में भी होगा, वो सिर्फ परचेस करेगा, दैट्स इट, राइट। ऐसे बहुत सारे टीम है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। उसको अगर फोन करके दोबारा बोल दो, सर अपना लॉयल्टी का कोड लेना था, कोड बना जाओ। इसका क्या काम होता है, बहुत आप रिक्वेस्ट करने के बाद हो सकता है एक मीटिंग में आएगा, मीटिंग करने के लिए नहीं, इतना बार बोल के मेरा जीना हराम करके रखा, एक बार चले जा, राइट। इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आपने उसका जीना हराम कर, एक मीटिंग आसुन, एक मीटिंग आसुन, आसुन पाए आसुन दादा आसुन, आग ना ওভাবে একটা চলে যাও ভাই, তারপরে কে কাটাতে হবে। আপনি বলেছেন একটা দাম চলে গেছে। ये इजी ऑर्बिट वाला लोग है, ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं। इसके बाद उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये लोग भी पैसा नहीं कमाते। इनका काम क्या होता है, ये भी जस्ट परचेस करता है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत दिमाग में कभी आता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये डेंजरस चीज है, बहुत ट्राई करके, बड़ा डेंजरस चीज है कि नहीं। इधर खड़ा हो जाए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ग्लास को पकड़, सर को ऐसे पकड़, अरे इधर देख, उधर सर को पकड़, कैसे पकड़, ठीक है। आप आइए, सर्कस चल रहा है, लेट मी ट्राई वाला। ऐसे जोर से मारेगा, सीधा ग्लास में जाके लगेगा, ठीक है। इतना जोर से मारेगा ना कि सीधा उसको ग्लास में जाके लगेगा, ठीक है। मैं जब 1 2 3 बोलूंगा तब मारेगा। तो टेंशन क्यों कर रहे हैं? अब क्या होगा, राजकमल सर्कस देखा ना, চাকু দিয়ে মারে, আপেলটা দু টুকরা কেটে যায়, আজকে এখানে হবে গ্লাসটা দু টুকরা হয়ে যাবে। গ্লাসটা হবে না, গ্লাসের নিচে দু টুকরা হবে, সেটা আমি গাড়ি से तुम इतना जोर से मारेगा, इतना जोर से, जब मैं 3 बोलूंगा कि सीधा ग्लास को एकदम 2 टुकड़ा कर देगा, राइट। अब ऐसा सिचुएशन है, मान लो ये चाकू है और ये एप्पल है। अब मैंने इसको बोला कि तेरे को मारना है, 1 2 3 बोलने के बाद वो मारेगा। रेडी, तुम मारेगा, कॉन्फिडेंट, ओके, ये लो कॉन्फिडेंट। अब जैसे मैंने 1 2 3 सपोज बोला, ये धीरे धीरे इसके पास आया। तू टेंशन मत कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश, ये बोलेगा कोशिश, तेरा कोशिश अगर आधा इंच नीचे हो गया, हमारा तो खत्म है, राइट। ये होगा कोशिश, राइट। लेकिन कुछ कुछ चीज में कोशिश ना होना ही नहीं चाहिए, राइट। जब मोदीकर में है, फॉरगेट लेट मी ट्राई, करना है तो मारना है, नहीं तो छोड़ दो मोदीकर करने का जरूरत। सिंपल फंडा, वो आके कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। भाई साहब, कोशिश करने के लिए क्या आता है। अगर मेरे को कोई इनवाइट करने आया था घर पे शादी के लिए, जब भी मैं बोल दूंगा कि दादा आसबार ट्राई করব, তারপরে আমি আসবো না, পরিষ্কার কথা, রাইট। অর ট্রাই বলে আবার কি জিনিস হয়, एंड हाउ इट वर्क्स, यू नो। जब भी आप मार्केट में जाओगे किसी से मिलने कि मैं तो मोदी का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कोशिश का मतलब है 50-50
50-50 वही तो है ना। पहले इसके पास गया, हमने इसको बोला दादा দারুণ প্ল্যান, দারুণ প্রোডাক্ট, আপনি কোটিপতি হতে পারবেন, আপনি এই হতে পারবেন সেই হতে পারবেন। ও সব কিছু শোনার পর করবো না, আমি করবো না। আপনার মাথায় কি আছে 50-50। এবার একটা 50 হচ্ছে পারবো, একটা 50 হচ্ছে পারবো না। ও যখন করবো না বলবে কোনটা স্ট্রং? পারবো না। এবার তবু আশা করে গেছে, হাল ছাড়বো না, আরো যাই। দাদা দারুণ প্ল্যান, পাওয়ার অফ ফ্লো করবেন, 900 টাকা পাবেন, এই পাবেন সেই পাবেন, সব শুনেছি, জীবনে আমাকে মুখ দেখাবেন না। এবার ওর যেটা পারবো না আরো স্ট্রং হলো। 3 নম্বরের কাছে গেল, উনিও বললো আমি করবো না। 4 নম্বরের কাছে যখনই গেল করবো না বলবে, ওর কি হবে? আমি তো জানতামই হবে না, দেখলে বলো না, আমি যাই বাড়ি। রাইট তো? 4 জনের কাছে কিছু আমি তো জানতামই হয় না, আমি তো জানতাম। রাইট? সেই জন্য আজকে একে বলছিলাম, মার্কেটে গেলে কিছু গেম আছে, কিছু রুল আছে, সেই রুল ভুললে চলবে না। রুল হচ্ছে সবল মানুষে দেবে, রুল হচ্ছে আপনাকে অপমানিত করার চেষ্টা করবে। কিছু কিছু লোক আছে 1 ডিগ্রি উপর দিয়ে যাবে। তারা কি করবে? তারা তো করবেই না, তারপর আপনাকে বসে আবার 8 ঘন্টা বোঝাবে আপনার উপরে করা উচিত। এরকম লোকের অভাব নেই। তারা করবে তো না, কিন্তু আপনাকে বসে আবার বোঝাবে যে কেন করা উচিত নয়। এই ছবলগুলো খেতে হবে। এইখানে এই লেট মি ট্রাই বলে কিছু নেই। এইবার আসছে আরেকটা, যেটা হচ্ছে হার্ড। হার্ড মানে কি? এখানে লোকের একটু একটু পয়সা আসা শুরু হয়। এখানে লোকে কি করে? লোকজনের সঙ্গে দেখা করা শুরু করে, प्रोडक्ट बुझाना शुरू करें, किसी को जाके प्लान समझाते हैं, किसी को जाके प्रोडक्ट दिखाते हैं, किसी को जाके कुछ बोलते हैं, ये कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्शन शुरू हो जाता है। और क्या करता है वो? होम मीटिंग शुरू कर देता है, लिस्ट बनाता है, लोगों के साथ मिलता है, तब भी ज्वाइन नहीं करता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ शुरू करता है करने। I know what is hard है। जो आज तक मोदी केयर में पैसा कमाया 10 लाख 5 लाख 2 लाख, ये सिर्फ एक ही काम करता है, ये और ये डेली करता है, रोज करता है। यहाँ पे सबसे पैसा आता है। दिस इज कॉल्ड द हार्वेस्ट। अभी आप पिक्चर ले सकते हो जो भी लेना चाहते हो। कहीं पे शुरू करने का जरूरत है, कहीं पे स्टार्ट करने का जरूरत है। जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। जो लोग हफ्ते में 1 होम मीटिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 5 होम मीटिंग होना चाहिए। कहीं पे शुरू करने से होगा। अब मैं इसको बुलाया, सर आप इधर आइए, आपको बुलाता हूँ। शुरू करने से क्या होता है देखिए, सब पीछे पिक्चर देखिए। इनको एक टास्क देंगे हम लोग अभी। भाई साहब आपको इनको उठाना है। नहीं उठा पाएंगे? कोई उठा पाएगा? अच्छा, इनको दूसरा ऑप्शन देते हैं। अभी अभी जन्म लिया है, इसको उठाना है, उठा पाएंगे? ओनली 7 kg, 7 kg है। ये नहीं उठा पाएगा? 7 kg है, राइट? आज जन्म लिया है, ओनली 7 kg, उठा पाएंगे? यस और नो? कल उठा पाएंगे इसको? परसों उठा पाएंगे? करेक्ट। ऐसा 365 दिन अगर उठाओगे ना, तो एक टाइम में जाके इसको भी उठा पाएंगे। शुरुआत यहाँ से होता है, खत्म यहाँ से होता है। एक होम मीटिंग से शुरू होता है, एक दिन टीम में 365 होम मीटिंग होगा पूरे साल में। ये होता है शुरुआत। कहीं ना कहीं पे शुरुआत करने का जरूरत। शुरुआत इज द बिगेस्ट। यहाँ पे आने का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो यहाँ पे है। जाओ पारबो तो আমি प्रैक्टिस बार बार करा, हर बार करने का जो क्या स्ट्रेंथ होता है मैं बताता हूँ। मेरा 2015 में नया प्लान आया, ठीक है मैडम, 2015 में पुराना वाला प्लान आया। अब हम भी कुछ प्लान को सीख रहे हैं। अब हम ना ऑफिस में खड़ा हो जाते हैं, प्रैक्टिस की जिन्हें ज्यादा बोलिए, ऑफिस में खड़ा हो जाता था। जब भी लोग घूमते थे ऑफिस में, हम देख रहे अकेला कौन घूम रहा है, तो हम प्लान समझाएंगे, क्योंकि हमें तो सीखना है। हम सोच रहे हम प्लान अकेले कैसे सीखेंगे, किसी को तो दिखाएंगे प्लान, देखने से तो हम करने से हम सीखेंगे। तो हम ऑफिस में देखते थे कि अकेला कौन घूम रहा है, क्यों? क्योंकि एक साथ 10 को समझाएंगे, गलत समझे तो 10 तो चला जाएगा, एक चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे इसको पूछा, दादा কোথা থেকে এসেছেন? এই তো মেদিনীপুর থেকে। কজন আছে সঙ্গে? 5 জন। ঠিক আছে, কাজ করুন, কাজ করুন। দাদা কোথা থেকে এসেছেন? আমি তো এসেছি বহরমপুর থেকে। কজন সঙ্গে আছে? যে কেউ না, আমি একা। আসুন বসুন। একা একা প্ল্যান, मैं स्टार्ट प्लान उसको समझा रहा, ये वो ये वो ये वो।
अब ये बंदा बाहर जाके क्या बताता है, सर कितना अच्छा है बेटा, हमको अकेला बिठा के प्लान समझाया, हम मनी वाले तेरे को कौन समझाया, हम खुद ही सीख रहे हैं कैसे प्लान दिखाना है, तेरे को कौन समझा रहा है, और घंटा पर पड़ गया तेरे को समझाऊंगा। लेकिन मैं रोज एक एक ढूंढ के करता था, एक बार एक दिन में किसी को नहीं मिला। हम घर गया, हमने देखा कि मेरा अंकल बैठा हुआ है, हमने शुरू हो गया अंकल के सामने, बसो तुम्हारे देखा जी, ये आपको 2 लोग लाना है, मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, मैं बोला बैठो। फिर क्या हुआ, आपको यहाँ पे 4 लोग लाना है, मैं नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं करूंगा, तो दिखा मत देना, मुझे पता है। उसके बाद मैंने तुम देखो और 2 लोग बाद में लाना है, खड़ा हो गया, मैं जा रहा हूँ मैं नहीं करूंगा। तुमको कौन समझा रहा है, हम खुद सीख रहे हैं कि कैसे दिखाना है, हम तुमको समझा ही नहीं रहे, तुम आराम से बैठो, तुमको करना नहीं है। कैसे सीखा हमने, बार बार कर करके। ये बिजनेस में यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। एवरी डे यू स्टार्ट डूइंग, आप रोज शुरू कर दो काम करना। एक होम मीटिंग, एक किसी को प्लान दिखाना, दिन में कम से कम एक प्लान शो या एक होम मीटिंग बिना दिखा के घर मत जाना। और अगर चले गए, बाई चांस दिखा नहीं पाया, तो घूमने लगे हस्बैंड की खुशी थी, बोले तुम्हारा একটা প্ল্যান দেখিয়ে দেবো, তাহলে আমাকে দেখি কি হবে না, আজকের কোটাটা কমপ্লিট থাকে। আই এম টেলিং বি दैट सीरियस। ये बिजनेस मजेदार बिजनेस है, कुछ खोने का नहीं है इस प्लान में। आप लोगों को पॉकेट से मोदी के कुछ नहीं मांग रहे, इस प्लान में सिर्फ आपको देना ही है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों को भी जाना है। अंडरस्टैंड, ये प्लान में आप लोगों को देना ही पड़ेगा, देना ही है मोदी का, आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। The only loser जो कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस का कि हमको नहीं आएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हमको सेल्स नहीं आता, ये थॉट प्रोसेस इज द एनिमी, और कोई एनिमी नहीं है इस प्लान में। 4 चीज का ध्यान रखना। पावर ऑफ 4, एक पावर ऑफ 4 का शेयर वैल्यू कितना है आप लोगों को पता है। जो भी नए लोग होंगे उनको पावर ऑफ 4 करवाने का कोशिश करिए। पावर ऑफ 4 करेगा तो कम से कम उसको 900 रुपीज का फर्स्ट चेक आएगा, विच इज बिग। 900 रुपये का चेक बहुत बड़ा होता है। और दूसरा क्या है, टीम में कितने सारे डायरेक्टर्स को हम ला सकता है। एक डायरेक्टर को 5,000 के ऊपर चेक मिल रहा है, ये भी मोदी के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है। प्रशांत शायद दिखाया आप लोग, राइट। तो अभी हम पूछोगे हमारा काम क्या है, 2 का। एक पावर ऑफ 4 कितना आ सकता है, डायरेक्टर टीम में कितना ला सकते हो, दैट्स इट। इस प्लान को थोड़ा सिंपल रखो, कितना पावर ऑफ 4 मेरा टीम में आएगा। पिछले बार अगर 1 आया, इस बार 2 आना चाहिए। पिछले मंथ अगर 2 आया, इस बार 3 आना चाहिए। पिछले मंथ अगर 3 आया, इस बार 4 आना चाहिए। एक करके बढ़िए, छोटा स्टेप। अगर आपका टीम में 4 पावर ऑफ 4 है, 5 लाएंगे। टीम में 1 डायरेक्टर है, 2 लाएंगे। टीम में 2 है, 3 लाएंगे। दैट्स इट। छोटा खेलिए। एक दिन इतना डायरेक्टर होगा कि आप बोलोगे इसको भी उठा लोगे। सो नथिंग टू गेट वरीड, सीधा जाके फील्ड में जंप करो। जाके बोलते हैं ना हिंदी में भिड़ जाओ, सीधा जाके भिड़ जाना। इस प्लान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लान। लोगों का जो चेक आया हुआ है आप लोगों ने देखा, एवर है लोगों को मिला है। रेड डायमंड्स को जो चेक मिला है यहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्लू डायमंड्स को जो चेक मिला है आप लोगों ने देखा है। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लान। गेट जितना पावर ऑफ 4 हुआ है, 1 ज्यादा करने की कोशिश करो। डायरेक्टर जितना टीम में है, 1 ज्यादा करने की कोशिश करो। आपने खुद डायरेक्टर नहीं बना तो आप खुद डायरेक्टर बनने की कोशिश करो। यहाँ पे प्लान को और कुछ नहीं सोचना है। So the best part, थैंक यू सो मच कि आप लोग 2-2.5 घंटा, हाँ राइट, यहाँ पे आए। और कुछ लोग अगर सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, ये हाइट को जो बैठा हुआ है सब 1,000 रुपए के इन्वेस्ट के एज में बैठा हुआ है, कोई फ्री का नहीं। एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट, ये मैं बहुत मानता हूँ, जाने से पहले बोल के जा रहा हूँ। आप लोग अगर सोचते हो कि आप लोग मीटिंग में आए तो आप लोग टोटली गलत है। एंड आई टेल यू व्हाई। आप लोग मीटिंग में नहीं आए, एक ऊपर वाले का ना एक पावर काम करता है कि आप लोगों को इस मीटिंग में भेजा है। जो लोग आज नहीं आए ना, भगवान ने उसको भेजा भी नहीं है। पता है किसको भेजता है? ऊपर वाले, जिसका किस्मत पे लिख देता है कि मोदी केयर से आपको कुछ मिलने वाला है, इसलिए आपको पुश करके मोदी केयर का मीटिंग। जो भी लोग आप सोच रहे हो कि हम आए, हमें आज की मीटिंग ऐसे थी, आप लोग कोई नहीं आए। सॉरी टू से, आप लोग कोई नहीं आए। कोई ना कोई पुश कर रहे हैं ऊपर से कि तुम जाओ मीटिंग में, तुम जाओ मीटिंग में। 1000 रुपया बिलिंग करके भी आप लोग आए। कुछ ना कुछ तो है। ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन मोदी केयर। You all will do fantastic. Thank you and all the best. Thank you.